Hello students, let us start up with the essay type questions from chapter number 5, Admission of Partner. Okay, let's now go for question number 13 today first. That one variation in this is that there are capital and current account, means fixed capital method question this is. That is the main reason to practice it out. Okay, A and B are partners. Sharing PL 4:1. Okay, balance sheet is given to you. They have admitted C as a new partner on the following conditions. Okay, they decided that new PL they will keep. Please keep this in mind that new PL is 3:1:1 for ABC, and old PL, if you check, it is given to you 4:1. Right? How much is old PL given to you? 4:1. So when old is not equal to new, naturally we will have to go for calculation of sacrifice also. On top of it, there are certain adjustments. See, C will bring 20,000 as capital for his 1/5 share in, it is very clear from here, profit, and 5,000 as his share of goodwill in cash. Out of goodwill, half of the amount will be withdrawn by old partners. Last question also, this point we have done. There are then some other adjustments also given. Just to practice main point of current account, how to deal with the fixed and current account in case of admission, we are taking up this question number 13. Okay, so let's go for calculations first. Always we first calculate, as you know very well, that sacrifice ratio. Let us go for it. Okay, point number 1, calculations. In that, first sacrifice ratio is to be calculated. In that case, we know old ratio is already given 4:1 for A and B, and now new ratio is also mentioned to us, that is 3:1:1 for A, B and C, right? So when old and new are available, sacrifice can be calculated very easily. Sacrifice, if you want to find out for sacrifice of A and sacrifice of B. Okay, sacrifice of A, sacrifice of B. Sacrifice formula is very clear to you by this time. That is old minus new. Let us put for both of them. Here 4/5 old, for B 1/5 is the old, minus new 3/5, and for B it is again 1/5. Interestingly, here sacrifice is 1/5 and here the sacrifice comes to nil. 0/5 होगा तो naturally. So पूरा sacrifice किसने किया है? पार्टनर ए ने. तो पूरी गुडविल किसको मिलेगी? पार्टनर ए को. बी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करता तो गुडविल का पैसा उसको नहीं. टोटली ए इज सेक्रीफाइसिंग, सो फुल अमाउंट ऑफ गुडविल गो टू ए's account. Okay, that only we have to understand main here. On top of it, when current account is working, here we have to be very careful for the treatments. So let us go and start up with the question. If I try to put goodwill entry na, it will be like cash 5,000 लेके आ रहा है partner C. So cash account debit to premium for goodwill, right? Okay, that is 5,000 brought by him. और ये पूरा 5,000 अभी किसको जाएगा? This will go to partner A. He is only sacrificing. So premium for goodwill account debit to A's which account? Current capital. Okay, that is variation. पैसा जाएगा लेकिन जो भी चेंजेस है वो करंट अकाउंट में होंगी, तो करंट कैपिटल में ये अमाउंट सेट होगा. Even here when you look to the question, no, in this question you are given old goodwill also. कितना? 5,000. This old goodwill will be distributed to old partners in old ratio, but this also will be reflected in current capital account. That is the point which you have to understand. Okay, so having this done, we are ready for the question. Let us see what will we do for the format. See, format is same. We will have to prepare what? Revaluation account, then partners capital. I have prepared A and B because much C का कुछ capital के अलावा और कोई major इतना change है नहीं adjustment. Then C and cash oblique bank account. Then balance sheet as on this 31/3/17. But this is after admission of partner C, right? So वही 4 चीजें हमने बनाई है. Let us start with the question. Step 1 याद रह गया होगा, बैलेंस ब्रिंग डाउन करेंगे.
by balance brought forward. Balance brought forward. Of A and B. Here, see that I am bringing down current. Changes will be done to current capital account. फिक्स कैपिटल के साथ गड़बड़ करनी ही नहीं है, और आप चाहें तो ये जो फिक्स कैपिटल है बैलेंस का, ए का और बी का फिक्स कैपिटल हम सीधा कहाँ लेके जाएंगे? वी विल टेक टू बैलेंस शीट, ले सकते हैं. सो लेट अस राइट हियर कैपिटल अकाउंट एज हेडिंग एंड पुट ए का कितना होगा, है जो भी है 75,000, और बी का कितना दिया हुआ है 25,000. Whatever new partner will bring as capital, that also will be going to this fixed capital. It will not be reflected to current capital. That is the main point which you have to understand. Okay, अभी ये current का जो balance है मैं capital में लेके जाऊंगी. यहाँ पे 8,000 A का और B का 2,000 respectively. Okay, now see that बैलेंस ऑफ दिस इज ट्रांसफर्ड. इफ आई चेक एसेट साइड, कैश और बैंक का बैलेंस भी लूंगी मैं और यहाँ पे लिख दूंगी टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड. वी हैव सपोज टू राइट हियर 3,000 इट कम्स डाउन टू. ओके, ये 3,000 हमने ट्रांसफर कर दिए. फर्स्ट स्टेप ओवर, बैलेंस इज ब्रॉड फॉरवर्ड. स्टेप नंबर 2, दैट इज check in with the adjustments and move on with the question. See, let us see first adjustment. C has brought 20,000 as capital. सीधा मैंने आपको बोला कहाँ जाएगा ये 20,000, सीधा यहाँ लेके जाएंगे क्योंकि ये फिक्स कैपिटल ट्रीट होगी. एंड बट एंट्री पास करें तो एंट्री में कैसे होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. सो कैश में कैश अकाउंट इट विल मेंशन टू सीज capital account or fixed capital account 20,000. One effect here, another effect goes to balance sheet में हमने directly set कर दिया है ये amount. Okay, on top of it, partner has brought 5,000 cash as goodwill, out of which half amount is withdrawn by old partners. पूरी goodwill हमने entry करके रखी है कि 5,000 पूरी A को जाएगी, A ही sacrificing था, और आधा इसका 2,500 A उसी टाइम withdraw कर देगा. तो विड्रॉवल की भी एंट्री अगर देखना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है. एज करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, आधा लेके जा रहा है टू कैश. 50% अमाउंट इज विड्रॉन बाय पार्टनर, तो 2,500 रुपए वो उसी टाइम पे विड्रॉ कर देगा. राइट, 50% अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर इमीडिएटली. लेट अस गिव इफेक्ट्स टू ऑल दीज एंट्रीज हियर. फर्स्ट, कैश ब्रॉट, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू premium for goodwill account. Cash account debit to premium for goodwill account 5,000. Only A is sacrificing, so A will get full amount. Let us go to A's account here. Premium for goodwill account debit. पैसे मिल रहे हैं तो पार्टनर को क्रेडिट होगा. शॉर्टकट में याद रखो, if amount is received, partners credit by premium for goodwill. Only A 5,000, B not sacrificing, nil. Next, immediately आधे पैसे लेके जा रहा है तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? केयरफुली एंट्री भी पास कर सकते हैं. A's current capital account debit to what? Cash account, and cash at the same time credit by, लिखेंगे आप A's current capital ब्रैकेट में गुडविल वाले पैसे 2,500, 50% immediately withdrawn by the partner. Okay, check out, this adjustment is complete now. Now number 2, value of land and building is increased by 10% while value of furniture and stock is to be reduced by 10%. आराम से पहले increase 10%, land building एक ही चीज यहाँ दी हुई है. check the question, land and building कितना दिया हुआ है? 35,000. tick and lift it. 35,000 का 10% का राइज है तो प्रॉफिट. रीवैल्यूएशन में क्या करेंगे? इसको क्रेडिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग. बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 3,500. 35,000 का 10%, 3,500. सेकेंड इफेक्ट ऑफ इट गोज टू, ऑफ कोर्स, एसेट साइड. वी विल राइट लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग में आप सीधा ही 35 ऐड करके 35,000 प्लस 3,500, 38,500 आउटसाइड. ओके,
नेक्स्ट इसी एडजस्टमेंट को टच कर रहे हैं. लैंड बिल्डिंग इंक्रीज कर दी बट फर्नीचर स्टॉक को डिक्रीज करना है 5%. सो पहले फर्नीचर 30,000 का है, 5% डिक्रीज ऑफ फर्नीचर, 5% 30,000 का हो जाएगा 1,500. तो 2 फर्नीचर रीवैल्यूएशन में डेबिट क्योंकि लॉस है, और फर्नीचर में से माइनस करेंगे. फर्नीचर नॉर्मल 30 है, 30 का 1,500 माइनस करेंगे आप, रिमेनिंग अमाउंट 28,500 इन बैलेंस शीट. सेम वे स्टॉक को भी 5% रिड्यूस करना है. तो स्टॉक का और वैल्यू दी हुई है, स्टॉक की वैल्यू दी हुई है कितनी, 15,000. 15,000 का 5% 750 रिडक्शन है तो लॉस, रीवैल्यूएशन में डेबिट टू स्टॉक अकाउंट. सेकेंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट. इमीडिएटली स्टॉक में से माइनस कर देंगे आप, 15,000 में से 750 माइनस होंगे तो 14,750 नेट अमाउंट इन बैलेंस शीट एसेट साइड, माइनस करके रिडक्शन करके. ओके, नाउ एडजस्टमेंट नंबर 3 केयरफुली. मार्केट वैल्यू ऑफ अर्निंग इन्वेस्टमेंट इज दिस विच इज नॉट शोन. कितनी है 35, और ये बुक में नहीं दिखाई गई है. बुक में देखो इन्वेस्टमेंट कितनी है 25. तो कोई बात नहीं है, 10,000 का राइज है और ऐसा राइज हमारे लिए प्रॉफिट होता है. रीवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000. Second effect, balance sheet direct. Now investment we will reflect at market value, that is 35,000. Okay. Next adjustment let us check. Provision for doubtful debt 10% on debtors. वापस से है लास्ट क्वेश्चन में जिसको हमने इग्नोर करा था मैंने, यहाँ पे आप अच्छे से समझना. डेप्टर्स 5,500 गिवन है और यहाँ पे ओल्ड बीडीआर आपको दिया है 500. सी दे से प्रोविजन फॉर डेप्टर्स टू बी मेड 10%. अगर मैं 10% 5,500 का बीडीआर रखना चाहती हूँ तो इट विल बी 550, राइट. 550 माइनस करके नेट अमाउंट बार 4,950. Now, second effect of it will go to revaluation. It works like PL account only. But be careful, to BDR difference. क्या difference? New minus old. New minus old only 500. So अभी excess 50 रुपए देने हैं तो हमारा अभी लॉस सिर्फ 50 रुपए का हुआ है. Okay. Next adjustment we will check. Adjustment number 5. Workman accident compensation is accepted by 1,000. चलो उसके बैलेंस को देखें. इधर कितना दिए 5,000. हाँ, अब उसमें से 1,000 का क्लेम हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये क्लेम बैलेंस शीट में आएगा. आउटस्टैंडिंग वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम. 1,000 रुपए तो रखने हैं हमको, क्लेम है. बाकी 4,000 हमारे प्रॉफिट हो जाएंगे. ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे हम बाय वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन और क्लेम अकाउंट. ओके, दैट यू विल डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशियो. बी केयरफुल, ओल्ड रेशियो 4:1. 4:1. Old partners old ratio. Next, go to next adjustment. Adjustment number 6. Dishonor expenses of bills 150 and bank charges 300 which were paid but not recorded in books. चीज सिंपल सी चीज है. अगर आपने डिसऑनर के खर्चा और बैंक की चार्जेस पे किए, एक्सपेंस, डिसऑनर एक्सपेंसेस एंड टू बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस, दोनों खर्चे हैं तो लॉस हैं. तो रीवैल्यूएशन में आप दिखाएंगे, इनका अमाउंट दिया हुआ है आपको, चेक कर लो. 150 and 300 respectively. 150 and 300 respectively. Okay. Now, here, this amount is an expense, so we represent it as an expense. This expense is being paid. Be very careful for the statement. Dishonor expense of this and bank charges which are paid. हमने पे किए हैं तो कैश में से क्या करोगे आप, इसको कैश जाएगी और एक्सपेंस दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे. ये अंडरस्टैंड करना था.
कैश जाएगी इसलिए कैश अकाउंट में लिखेंगे आप बाय डिसऑनर एक्सपेंसेस एंड बाय बैंक चार्जेस उतना, क्योंकि पेड है तो बैंक पे से उतना पैसा कम होगा, ऑटोमेटिकली 450 रुपीज वहां से आपको डिडक्ट करने पड़ेंगे. दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन. इट वॉज वेरी सिंपल. ओनली करंट अकाउंट की वर्किंग समझने के लिए किया है. शटडाउन पे चले जाएंगे. शटडाउन प्रोसेस पे इजीली आपको दिख रहा है यहाँ पे रीवैल्यूएशन का ये साइड ज्यादा है 13,000 इजी है टोटल यहाँ पे, और डिफरेंस आ रहा है कितना 10,750 गोज टू पार्टनर्स कैपिटल. कौन से करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. खाली ए और बी को 4:1 में बांटेंगे. 8,600 एंड 2,150 रिस्पेक्टिवली. ग्रैंड टोटल सेम आएगा 13,500. ट्रांसफर करो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में बाय क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन. चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपन प्रॉफिट. और यही 8,600 एंड 2,150. ओके. नाउ शट डाउन वेरी इजीली. ये भी क्रेडिट ज्यादा ही है दोनों का. 24,800 एंड 4,950. ओके. नाउ along with this, oh I am sorry, one thing we have debits credits तो चेक कर रहे और डेबिट से सब अमाउंट नहीं वेरिएशन किया अपन ने स्टेप में. सीधा शट डाउन में हो गए. पहले बैलेंस शीट को देखना है. बैलेंसेस कैपिटल्स ले लिए, करंट ले लिए, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन आ गया. क्रेडिटर्स नो चेंज तो सीधा यहाँ पे लाएंगे बैलेंस शीट में. कोई चेंज नहीं है तो ओल्ड वैल्यू से 4,000. इवन बिल्स पेएबल नो चेंज तो पूरा सीधा यहाँ पे आ जाएगा. सॉरी 1,000 बिल्स पेएबल. ओके. कोई चेंज नहीं, ओल्ड वैल्यू से ही आ जाएंगे ये लोग. इतना ही नहीं, अदर साइड इफ यू सी लैंड बिल्डिंग डन, फर्नीचर डन, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया, डेप्टर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल नो चेंज, BR no change, same 2,000 in balance sheet. Okay. Not only this much, cash bank has gone to its account. Last, goodwill old partners, old ratio, current capital में लेके जाएंगे. यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, to goodwill account distributed to old partners in old ratio 4:1. easy है ना. 4,000 और 1,000 बहुत इजी अमाउंट है क्योंकि 5,000 है. 5,000 को 4:1 में तो 4,000 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली. ओके. नाउ दिस साइड टोटल माइनस दिस 6,500 माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस आएगा 18,300. तो क्या करेंगे, बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड, बैलेंस शीट में लेके जाना है ये करंट अकाउंट करके, और इधर का डिफरेंस आ जाएगा 3,009. इजीली कर सकते हैं ना. बस 1,000 माइनस किया है इसमें से. 4,950 ग्रैंड टोटल 24,800. यहाँ पे बिना बोले इसको पहले ट्रांसफर कर दें. यहाँ पे क्रेडिट ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड, यहाँ पे लेके आएंगे करंट अकाउंट को. यहाँ पे नीचे चाहे यहाँ पे नॉर्मली लास्ट में आते करंट अकाउंट एक का और बी का, क्योंकि सी तो अभी आया है तो इसका अभी तक कोई डेवलप नहीं हुआ है अमाउंट. इनका कितना है वो ट्रांसफर कर देंगे. 18,300 3,950 टोटल करके बाहर डाल देंगे 22,250. ओके. सो दिस कंप्लीट्स हियर. नाउ शट डाउन कैश बैंक 23 and by 28,000 by balance carried forward minus this amounts and you will get 25,050 as a balance. This balance will be carried forward to balance sheet. बैलेंस शीट में कैश बैंक ले लेंगे आप 25,050. ये ग्रैंड टोटल सेम ही होगा. और कुछ और सोचे बिना इसको भी क्लोज कर दें अपन, कैपिटल को भी क्लोज कर देंगे. दिस कम्स टू 1,20,000. ओके. नाउ व्हाट एल्स, totaling simply 1,48,250. 1,48,250. This completes our question number 13 of textbook. Now again today's homework, be very careful कि आप है ना सारे प्रैक्टिसेस बरोबर करो.
Otherwise, it gives a problem to you to understand many things. Similar question in illustration I will give you as homework. Okay, homework. Simple I am giving you today. Only do question number 12 of your textbook as practice. Okay.